So I just posted a story on my Instagram asking you all if you would be interested in hearing some of my experiences that I've had with my customers. Like मेरे जो भी अच्छे बुरे कुछ भी ऐसे fun experiences रहे हैं जो मैं आपके साथ share करना चाहूँगी. Would you be interested in hearing that? And 93% of you all agreed. So here I am in front of my camera, sitting down talking with you all, and I'm going to be sharing all of those experiences which I'm sure is really fun for you all to watch. So make sure that you're watching the video till the end. And if you still don't understand anything, hi, I am Kushi, the owner of my online bookstore on Instagram named as thrift_books, and I am an entrepreneur and I run this business. If you watch the video till the end and if you subscribe to our channel, it would really mean the world to me. And let's begin with the video. In this video, I am sure that you will enjoy hearing all of my stories. So make sure that you bring something to eat, have fun, and watch the video till the end. Let's just begin with the video. Before we begin with the video, I think you all should appreciate me wearing something different color other than black, right? Like you all should appreciate. You all should by now know how crazy I am about black color and I wear just dark colored clothes, but we are wearing something different. You all should appreciate that. Please appreciate me right now in the comment section. But let's just begin with the video. So I recently gotten one experience. तो मुझे recently एक experience हुआ जो मुझे लगा कि I should share it with you all, cause why not? Like thrift books पे जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे 37,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. So basically I have 37,000 community of people. I also have a YouTube channel. I have invested 70,000 rupees on a good camera. So why should I not record and share that experience with you all, right? So I thought that I will share it with you all. तो क्या हुआ था पता है? So if you all don't know, Thrift Books is the online bookstore that's my venture, and we sell books there. And I myself, I am Kushi, the owner of that venture, and I am someone who's replying to all the DMs. So we don't have any team member as of yet. I'm the sole owner, sole person who's packing, taking the orders, replying, posting, shooting, editing, everything. It's just me. So we don't have any team. So if you are someone who is texting me on my Instagram on Thrift Books page, it's just me who's replying to you, ठीक है? So there was this customer, I will not take names. So वो जो customer है उन्होंने मेरे पास एक book set का order place किया था. So the book set was Hogwarts library का book set. It is a set of 3 books. I think you all should be aware of that. If not, then I will share the picture somewhere here. Hogwarts library का वो book set था. So she placed the order for that set. That set was for around 699 or 799. I am not sure. It's somewhere around that range. And उन्होंने वो place किया था order. Now we don't have COD, okay? मेरे कोई लाइक मैं ये बिज़नेस 3.5 ईयर्स से कर रही हूँ. मेरे 11,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स है अभी तक, एंड एक भी ऑर्डर COD वाला नहीं है. नॉट इवन अ सिंगल ऑर्डर, बिकॉज मुझे जो कुरियर सर्विस से मैं डिस्पैच करती हूँ उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है. एंड मुझे बाकी की कुरियर सर्विस में एक्सप्लोर नहीं करना बिकॉज उनके शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा है. एंड सेकेंडली COD में इश्यूज़ बहुत होते हैं कस्टमर्स के, बिकॉज दे विदाउट इवन एनी मिस्टेक वो रिटर्न्स होते हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ठीक है, दैट्स माय पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट अदर दैन दैट शी प्लेस द ऑर्डर, शी हैज़ मेड द पेमेंट, उन्होंने एड्रेस डिटेल्स भेज दिया, ऑर्डर कन्फर्म हो गया. तो अभी हम लोग ने वो ऑर्डर पैक किया, वो ऑर्डर डिस्पैच किया, वो ऑर्डर कस्टमर को रिसीव भी हो गया, एंड विद इन लाइक 7 to 8 वर्किंग डेज ऑर्डर रिसीव हो गया. नाउ हम लोग की पॉलिसी, इफ़ यू चेक अवर वेबसाइट, इफ़ यू लाइक एनी टाइम DM अस, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, इफ़ यू आस्क मी अबाउट रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी, मैं वो आपको बता देती हूँ. सो अवर रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी इज़, वेन एवर यू रिसीव अ पार्सल, प्लीज़ टेक अ वीडियो वाइल यू आर ओपनिंग द पैकेज, सो दैट इन केस वो पैकेज में कुछ भी इशू होता है,
मैं तो यहाँ से प्रॉपर बबल रैप करके न्यू बुक्स, न्यू सेट, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर पैक करके मैं आपको सेंड कर रही हूँ, बट जो इन बिटवीन ट्रांजिट के बीच में क्या हो रहा है, आई डोंट नो, राइट? सो वेन एवर यू रिसीव द पार्सल, just take a video while you are opening the package, so that कुछ भी issue हो you can anytime send me and we both have the proofs कि नहीं वो parcel open करते time genuinely वैसा था, ठीक है? So that's the refund and exchange policy that we have. अगर opening video है आपके पास, आप मुझे send करते हो, उसमें issue होता है तो वॉट एवर यू से, इफ़ यू वॉन्ट द रिफंड वी विल डू दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सचेंज तो आप वो भेज दो और हम लोग वो न्यू सेट भेज देंगे। जो सेंड करते हो उसका भी हम शिपिंग चार्ज आपको पे करते हैं। सो दैट इज़ द पॉलिसी, ठीक है? व्हेन दैट पर्सन जिन्होंने वो सेट ऑर्डर किया था उनको वो रिसीव हो गया था, सो शी डिडंट लाइक द क्वालिटी। वन दैट हम लोग का कभी भी रिफंड एंड एक्सचेंज क्वालिटी के ऊपर नहीं होता है, क्वालिटी हम आपको पहले ही दिखा देते हैं। सो वी हैव दिस रील सेक्शन इन अवर पेज जहाँ पे आपको मोस्टली आई थिंक सो 95% प्रोडक्ट्स के क्वालिटी चेक वीडियोस दिख जाते हैं। एंड वो जो क्वालिटी वो जो रील होता है जिसमें हम लोग ने क्वालिटी चेक वीडियो डाले हुए होते हैं, यू रिसीव एग्जैक्ट सेम स्टॉक इटसेल्फ, यू रिसीव एग्जैक्ट सेम क्वालिटी इटसेल्फ। जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था हमने वो ऑलरेडी उनको दिखा दिया था, बट एंड वो वीडियो देख के उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, सब कुछ हुआ था, डिलीवर भी प्रॉपरली हुआ था। बट देन शी वॉज लाइक आई डेंट लाइक द क्वालिटी एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज़ ओरिजिनल एंड एवरीथिंग। Now, we don't have original copies for each and every book set or books because of the non-availability, because of the heavy procedures and all of that. And जो भी होता है हम हमारे कस्टमर्स को बता देते हैं, because we started selling books which were second hand and that's why the name is thrift books. हम हमारे कस्टमर्स को हर डिटेल बता देते हैं, if it is new, if it is second hand, if it is original, if it is a first copy, जो भी होता है हम उनको बता देते हैं। बट शी इज़ नॉट रेडी टू अग्री दैट वो ओरिजिनल है एंड वो अच्छी क्वालिटी है, जस्ट बिकॉज वो कुछ बेंड हो जाता है। लाइक यू ऑल एज अ कस्टमर शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बुक्स आर समथिंग विच आर हैवी। तो अगर वो ट्रांजिट के बीच में थोड़ा सा बेंड हो जाता है या थोड़ा देर वॉज वेरी माइन्यूट डिफरेंस, मेरे पास अगर वो इमेज रहा मैं आपको वो यहाँ पे आई विल अटैच इट, इफ़ नॉट देन जस्ट बिलीव मी, बहुत ही माइनर कुछ था। एंड शी वॉज लाइक मुझे वो नहीं चाहिए, आप झूठ बोलते हो, आपने सिर्फ ऑर्डर्स लिए, पैसे लिए एंड आपने मुझे कुछ भी वीडियो दिखा के कुछ भी सेंड किया। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज लाइक ओके, इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट सेंड इट बैक टू द एड्रेस दैट आई एम लाइक गिविंग यू। वो एड्रेस पे आप वापस भेज दो। आप जो वो वापस भेजने का शिपिंग चार्ज होता है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट एज सून एज वी रिसीव उसके बाद हम रिफंड प्रोवाइड करेंगे ना। लाइक यू ऑल नो दैट हाउ ट्रस्टवर्दी वी आर, बिकॉज हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं। आप हमारा पूरा पेज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मैं ऑर्डर्स कैसे भेजती हूँ, कैसे ऑर्डर्स लेती हूँ। आपने खुद ने ऑलरेडी ट्रस्ट करके ऑर्डर प्लेस किया, हमने आपको बुक्स भी डिलीवर की है। So there is no point of you not trusting me, but for me you are just a regular person who can scam me, right? I have no proof of how genuine you are. So अगर आपको रिफंड या एक्सचेंज चाहिए, मैं आपको एड्रेस जो है वो बता देती हूँ, आप वहाँ पे मुझे कुरियर भेज दो, कुरियर के चार्जेस भी हम आपको पे कर देंगे, बट एज सुन एज वी रिसीव इट आफ्टर दैट हम आपको रिफंड कर देंगे, या आप बोलते हो एक्सचेंज करना तो हम वो कर देंगे। शी फर्स्टली डिडंट अग्री, लाइक शी वॉज लाइक इफ़ यू वुड स्कैम मी, इफ़ यू वुड स्कैम मी। भाई मैं क्यों स्कैम करूँगी? अगर मुझे स्कैम करना होगा तो मैं कब का कर चुकी होती। आई वुड हैव ब्लॉक्ड यू फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट हैव एनी कनेक्शंस। मैंने आपका ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं होता, मैंने आपके पैसे लेके कुछ भी किधर भी चली गई होती। लाइक मैं कब का आपको ब्लॉक करके किसी को पता भी नहीं चलता। आई वुड हैव डन एनीथिंग इफ़ वी वर स्कैमर्स। एंड बिलीव मी, 3.5 years of me doing this business, 11,000 plus happy customers till date, मैं क्या करूँगी आपकी 699 या 799 रुपीज़ लेके? पहले तो ये बताओ मुझे। बहुत बहस हुई, मैंने उनको बहुत बार मैसेज किया, समझाने का कोशिश किया, मैंने उनको रील्स भेजी, मैंने उनको पूरा पेज देखने के लिए बोला कि वाई डू यू थिंक दैट वी आर गोइंग टू स्कैम यू ऑन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है? वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने उनको ज़बरदस्ती बोला, if you don't send back the books at the location,
वी विल नॉट बी एबल टू डू फर्दर प्रोसीजर। ना मैं आपको रिफ़ंड दे पाऊँगी, ना मैं एक्सचेंज कर पाऊँगी। हमें जो बुक्स भेजे हैं वो तो एटलीस्ट भेजो, उसके बाद आपको जो चाहिए वो कर देना। तब जाके वो एंड में मुझे बहुत धमकियाँ देने के बाद मान गए कि ठीक है, आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं उस पर कर दूँगी। अभी मैंने उनको एड्रेस दे दिया बाय द एंड ऑफ द डे। उन्होंने वो डिस्पैच कर दिया। शी ऑल्सो सेंड मी द रिसिप्ट विच लाइक आई अप्रिशिएट, कि ट्रैकिंग डिटेल्स एंड रिसिप्ट भेजा कि इतना अमाउंट हुआ है, आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, या ऐसे है। मैंने बोला ठीक है। देन एज सून एज आई रिसीव द पार्सल, बिफोर रिसीविंग द पार्सल, उनके एंड में उनके ट्रैकिंग मतलब उन्होंने जब ट्रैक किया था उनको दिखाया था कि डिलीवर्ड। समटाइम्स व्हेन द पार्सल गेट्स डिलीवर्ड इवन एट द ब्रांच लोकेशन, तो वो डिलीवर्ड दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग एट XYZ प्लेस, उसके सपोज किसी ने तिरुपति कुरियर सर्विस जो है वहाँ से मुझे कुरियर भेजा है एंड वो मेरे लोकेशन पे ही भेजा है, पर तिरुपति कुरियर सर्विस जो मेरे एरिया में है उनके ब्रांच में भी जाके पहुँचा। ब्रांच वाले जब मुझे पहुँचाएंगे तभी जाके वो डिलीवर्ड होता है, राइट। बट कभी कभार वो ब्रांच में पहुँचने के बाद भी डिलीवर्ड दिखा देता है ऑन वेबसाइट। कोई भी कुरियर सर्विस का बोल रही हूँ, नॉट जस्ट तिरुपति कुरियर सर्विस। तो शायद उसकी वजह से उनको दिखा रहा है कि इट इज़ डिलीवर्ड। पर बहन, मेरे हाथ में तो आने दो पार्सल, मेरे हाथ में ही पार्सल नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई शी इज सेइंग कि डिलीवर्ड। तो वो मान ही नहीं रहते पहले तो। फिर जो वीकेंड्स होते हैं तो कुरियर सर्विसेज, माई सोर्सेज, नोबडी इज़ अवेलेबल। तो फिर मैं उनको कैसे तैसे मैंने उनको मनाया कि वीकेंड तक रुको, मे बी शायद मंडे या ट्यूसडे डिलीवर हो जाए, है ना। मंडे मुझे डिलीवर हो गया वो पार्सल एंड एज सुन एज आई रिसीव्ड आई टोल्ड हर दैट बाय द एंड ऑफ द डे आपको रिफ़ंड जो भी है मिल जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको रिफ़ंड किया एंड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। एंड जब तक मैंने उनको रिफ़ंड नहीं किया तब तक वो मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे, लाइक धमकियाँ देना कि इफ़ यू डोंट डू दिस, इफ़ यू डोंट रिफ़ंड मी, मैं लीगल एक्शंस लूँगी। मुझे 699 799 रुपीज़ के लिए लीगल एक्शंस लेने के लिए फोर्स मत कीजिए एंड ऑल। एंड आई वॉज लाइक, बहन, these are the policies through which a business is running. So for example, if it is Amazon, if it is Flipkart or any big like website, they have certain terms and conditions, right? तो just because I am a small scale business doesn't mean कि आप मुझे मैसेज करो आपको रिफंड मिल जाएगा। आप नो, अगर आपको कुछ इशू है, कुछ है, सेंड मी द वीडियो। उन्होंने वीडियोज़ नहीं भेजा, उन्होंने सिर्फ फोटोज़ भेजा। आई वॉज लाइक ओके, स्टिल आई कंसिडर्ड इट एंड मैंने उनको बोला आप मुझे भेजो, हम आपको जैसे डिलीवर होता है दे देंगे। आई नेवर डिनाइड द फैक्ट कि मैं आपको पैसे दूंगी ही नहीं। आई नेवर डिनाइड और टोल्ड हर कि नहीं आप वही पैकेज रखो, ऐसा ही होता है, क्वालिटी यही है। मैंने 1% भी उनको स्कैम करने का कोशिश, 1% भी उनको डिसअग्री नहीं किया, बट शी वॉज जस्ट नॉट पेशेंट एंड वो सब इतनी धमकियाँ दे रही थी। आई वॉज लाइक ओके। जैसे ही मैंने उनको रिफ़ंड कर दिया आई वॉज लाइक मुझे अभी इनसे बात ही नहीं करनी है, हो गया। आई हैव डेल्ट विद दिस कस्टमर, आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। आई हैव लर्नड माई लेसन एंड एवरीथिंग इज डन। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी क्लियर with each and every customer that whenever you open the parcel please take the video so that we both have the proofs and मेरे पास भी proofs होगा तो मैं भी मेरे sources को share कर पाऊँगी कि आप ऐसी नहीं ऐसी qualities भेजो, right? It's fair and square for each and everyone. So I've learned, I've decided that I'm not going to talk to her. The next day she again texted me एंड मैं नोटिफिकेशन से भी नहीं देख रही थी, मैंने ओपन ही नहीं करना चाहा चैट कि अभी क्या होगा। उनको सब जो चाहिए था वो उनको मिल गया। अब मुझे उनसे बात करने में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सो मैंने चैट ही ओपन नहीं किया। शी कॉल्ड मी, आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। आई वॉज लाइक अब तो ये गए, लाइक वाई इज शी डिस्टर्बिंग मी, फर्स्टली कॉलिंग समवन। I was in a meeting, I am busy, I am not replying, you should understand, she is calling. तो मैंने फिर उनको रिप्लाई किया एंड देन शी टेक्सटेड मी that why are you selling first copies or why are you not selling the original copies, and I am asking this genuinely. So I thought that okay, let me just answer it कि मेरा जो बुक स्टोर है उसमें 95% of the books, 95% of the titles that I sell are from foreign authors, they are not Indian authors की books बहुत ही bare minimum होती है एंड वो भी सेकेंड हैंड होती है। आई डोंट हैव एनी न्यू कॉपीज़ ऑफ देम।
तो मेरे पास सेकेंड जो भी फॉरेन ऑथर्स की होती है, इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट द अथॉरिटीज़ राइट, टू गेट ऑल द राइट्स, टू गेट एवरीथिंग and need permission, because not even publication house has that permissions at times. जो भी प्रिंटिंग स्टेशंस होते हैं उनके पास भी कभी कभार नहीं होता है परमिशन, बट वी सेल, एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज़ सच बिग ऑफ एन इशू जितना आप बना रहे हो. एंड द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ कि जब भी मैं कॉलेज जाती थी, वहाँ पे एक अंकल थे जो बुक्स बेचते थे ऐसे रोड पे. तभी तो इतने पैसे नहीं होते थे, तो मैं वहाँ से मनी सेव कर करके उनके पास से बुक्स लेती थी. एंड वो अंकल को मैं रिसेंटली मेट्रो स्टेशन मिली थी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर. एंड वो अंकल को मैंने बोला कि अंकल मैंने बुक स्टोर चालू किया है, आई सेल बुक्स ऑनलाइन. एंड मैंने उनको खुश होकर सब बोला. अंकल ने मुझे उनका फ़ोन निकाल के he opened his gallery and showed me a picture of him with James Clear, who is the author of Atomic Habits. Atomic Habits के author के साथ उनका ऐसे picture देख के I was so happy, and he told me that the author was so happy to see his book on my store, and he was so happy that I am sharing this book with large number of audience. And I feel that that's the perspective of any author, कि उनको सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं होते हैं. एंड आई थिंक दैट इन फ्यूचर या लाइफ में कभी अगर मैं भी कोई बुक लिखती हूँ, आई वुड not have any big problem if someone else is selling a first copy and earning profits, because my intention of writing this book was to spread the content to more number of people. चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, चाहे मेरे पब्लिकेशन को जिनको मैंने राइट्स दिया उनके थ्रू हो, या कोई अदर डीलर जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस हो उनके थ्रू हो. सो आई डोंट थिंक दैट इवन आई वुड बी हैविंग सच अ बिग इशू. सो वाई टू मेक इट. आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट यार पर्सपेक्टिव के जो ऑथर्स होते हैं उनको उनका प्रॉफिट्स नहीं मिलता, बट जितना ईजी आप समझते हो राइट्स लेना उतना ईजी होता नहीं है. एंड देर आर सो मेनी ऑथर्स हु जेन्युइनली नो दैट इन अदर कंट्रीज देयर बुक्स आर बीइंग सोल्ड. जो जेम्स क्लियर था, वो लाइक उनको क्या लगा था कि उन्होंने राइट दिया वो अंकल को वो बुक सेल करने का. ही अप्रिशिएटेड, ही वॉज लाइक आई एम सो ग्लैड दैट यू केप्ट माई बुक हियर. So that's the other perspective that I have. You all can disagree with me, or you all can have a different perspective. I agree to that. But I feel that there are so many illegal things happening, rape, corruption. There are so many illegal things happening in the world. People are not focusing on those things, or people are not questioning that, but they're questioning me for selling first copy books on which no other author is having an issue. And I am selling a product which is the books who's already helping people, like be it if they are getting knowledge, if they are increasing their vocabulary, any which ways books हमेशा helpful रही है. So when I am even spreading good things, they have an issue and they are questioning me. So I told her, I explained her all of this in the chat, and I showed her, like I explained her this perspective. And then she texted me that I genuinely appreciate this, and I am so sorry, and I can't take back my words that I have told, but I would genuinely wish that your business grows and multiplies. And I was like, okay, now I'm satisfied. Now I'm glad that she understood my perspective as well. So that's one of the biggest experience that I've had in the recent times, which I thought that is worth sharing with you all, because even from you all somebody would have that question, and वो question होना जायज़ भी है, but please try to understand what I'm trying to say. That's all I'm asking for. So that's that. And this is a small story that I wanted to share it with you all, so I did. And now this video has become like, I think 20-25 minutes long, but that's that. I hope you all enjoyed listening to this chapad and an experience. And yeah, this brings us to the end of this particular video. Thank you so much for watching the video till here, if you're still watching, because I love you guys if you're still watching. And for the last week's giveaway, congratulations.
for the winner. It is mentioned in the description box. Please check that out. Don't forget to check that out. And also for this week's giveaway, you have to like this particular video. If you have to subscribe to our channel down below, you have to follow us on Instagram, and you have to comment below that you have followed, subscribed, liked everything, and also let us know what is the one kind of video that you would like to see in the future. And that's all. Just by doing that, you get to participate in the giveaway and get a chance of winning free books of worth up to rupees 2000. So I will see you very soon the next time, but until then, take care and bye bye.